Assalamu alaikum. Dear student, in today's lecture, we will discuss about fish feeding and feeding types, and at which age, how much types of feed and how much ratio of the feed could be given to the fish. First of all, these are the objectives that we will discuss in today's lecture. The first one is how we can maintain the good health of organism and how we can minimize the waste of organism and improve the water quality parameters of organism in which it live, and how the organism can get maximum weight and how we can produce maximum and optimum yield by improving the health and immune response of organism. Actually, the main topic of today's lecture is feeding types. There are two types of feedings. The first one is natural feed, and the second is artificial feed. As you know, in natural feed, the fish that completely rely on the natural feed and will not supplement the organism with artificial feed. And artificial feed that we prepared in the laboratory with different plant and animal sources. Feed quality depends upon the nutritional efficiency as well on the physical characteristic. When we talk about the nutritional efficiency, it means we are talking about either the feed have um, maximum number of vitamins, minerals, proteins, carbohydrates or not that is required for the organism, and it is important for the growth and immune response of organism. And when we talk about the physical characters, it means we are talking about the palatability and practical particle size and fine grading, is it done or not, and both are very important for fish. Then it is, as I already discussed about the nutritional quality that contain the vitamins, proteins, minerals, and the feed should contain less fat, proper vitamins, and the bag quality in which we store the feed should be good, and so there will be less chance of rancidity of the feed. So feeding storage is also very important. स्टोरेज जो है वो बहुत एक ऑप्टिमम, यानी कि अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपको रिकमेंड किया गया है तो आपने उसी के ऊपर फीड को स्टोर करना है. ठीक है. एम्बिएंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर द टू मेन फैक्टर्स टू बी कंट्रोल्ड. फॉर एग्जांपल, अगर बहुत रेंसिडिटी है फीड में, तो हो सकता है कि आपने जहाँ पे फीड स्टोर की है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या तो लो है या तो बहुत ज़्यादा हाई है. तो ये जो टेम्परेचर की कंडीशन है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. तो storage is also a very important factor. Then feeding correctly, how you are feeding your fish, and either you are calculating the feed according to the size of organism or not, and at which time you are giving feed to the fish, either it is at right time or not. The first important factor is the feeding that affect the growth performance of organism and nutritional quality, and it should be in correct size and the feed the correct amount. फॉर एग्जाम्पल, अगर 2% रिकमेंड की गई है तो आपने 2% ही देनी है, आप 3 या 4% फिश को फीड नहीं दे सकते. अगर छोटे साइज की फिश होती है तो उसको आप ज़्यादा फीड देंगे. और फीडिंग टाइम क्या है, क्योंकि हर फिश का जो फीडिंग का टाइम होता है वो डिफरेंट होता है. कुछ जो फिश होती हैं वो डानर डस्ट, यानी कि जो अभी सूरज निकलने से पहले फीड करती हैं. कुछ जो है वो उसको टाइम जो है वो अफेक्ट नहीं करता, किसी भी टाइम पे फीड ले सकती हैं. तो ये हर फिश की स्पीशी के लिहाज से डिफरेंट होता है. देन फीड सिलेक्शन स्पीशी पे बेस करता है. ठीक है. यानी कि अगर आप कॉमन कार्प की बात करें, तिलापिया की बात कर रहे हैं, कैटफिश की बात कर रहे हैं, तो हर एक की फीडिंग सिलेक्शन डिफरेंट होती है. कुछ कार्निवोर होती हैं, कुछ हर्बीवोर होती हैं, कुछ ओमनिवोर होती हैं. ठीक है. क्वालिटी फीड की डिपेंड करती है. कुछ के पास कुछ जो है वो हाई प्रोटीन जो है वो डिमांड करती हैं, यानी कि 35 CP, 30 CP, 40 CP जो है वो उनको रिक्वायर होती है, और कुछ को कम CP वाली फीड भी इनफ होती है. FCR जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. FCR जो है ये फीड कन्वर्जन रेशो है कि कितनी हम फीड दे रहे हैं और कितना फीड एफिशिएंटली उसको कंज्यूम कर रही है और वेट गेन कर रही है. एज और साइज पे भी डिपेंड कर रहा होता है.
ठीक है। आप किस तरीके से करेक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं कितनी फीड आपने फिश को देनी है, तो ये हम फीड रेशो निकाल सकते हैं। फिश का साइज कितना है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे फीड रेट के साथ, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर कितनी है फिश का, 1 पाउंड के अंदर कितनी टोटल फिश है, और फिर उस टोटल नंबर ऑफ फिश को आपने उतनी फीड देनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है कि 5 ग्राम तलापिया रिक्वायर, एक तलापिया का जो साइज है वो 5 ग्राम है, उसको 8% फीड रिक्वायर है आप इट्स बॉडी वेट, ये हमने उसके बॉडी वेट के हिसाब से निकाली है। यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन है किस तरीके से आप उसकी फीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन एडजस्टिंग फीड रेशो, आप किस तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, रेन कंडीशंस का, कैरिंग कैपेसिटी का, फिश के साइज का, टेम्परेचर का, ठीक है। दीज ऑल पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फीड रेशो। Then the most important thing is administering the feed, rapid and complete consumption of feed by the fish, minimal metabolic energy expenditure associated with feeding, ensure all the fish have equal access to the feed, which is very important. क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एग्रेसिव फिश होती हैं, जो ज़्यादा डोमिनेंट फिश होती हैं, वो फीड को कंज्यूम कर लेती हैं, और जो लेस डोमिनेंट होती हैं, जो वीक होती हैं, उनको फीड नहीं मिलती, और अल्टीमेटली उसमें डिफरेंट डिजीज आउटब्रेक होती हैं, और एक फिश में जब डिजीज आउटब्रेक होगी तो पूरे ग्रुप में होगी, और अल्टीमेटली मोर्टेलिटी रेट बहुत इंक्रीज हो जाता है। देन फीडिंग मेथड, हैंड फीडिंग, डिमांड फीडिंग, ऑटोमेटिक फीडर, सब सरफेस फीडर, हैचरी फीडर, ये सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके जरिए आप फिश को फीड सप्लाई कर सकते हैं। देन फीडिंग फ्रीक्वेंसी, फीडिंग शुड बी 1% ऑफ बॉडी वेट बट वी फीड 2 to 3 टाइम्स अ डे। एफसीआर जो है वो आपने इसको कैलकुलेट करना है। ग्रोथ शुड बी ऑप्टिमम, जुवेनाइल फिश जो है वो उसकी फीडिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि उसका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है और उसका स्टमक स्मॉल होता है। 400 ग्राम फिश जो है उसको आपने सिर्फ दिन में एक दफ़ा फीड करना है, ठीक है। फीड जो है आपने मस्ट बी कंज्यूम्ड, अगर आपने फिश को फीड दिया है तो मेक श्योर कि वो फीड 15 मिनट्स या 20 मैक्सिमम मिनट में वो फिश कंज्यूम कर ले। इसका मतलब है कि अगर उसने इस गिवन टाइम में फीड को कंज्यूम कर लिया, फिश हेल्दी है और एक्टिव है, और अगर नहीं तो इसका मतलब है कोई ना कोई डिजीज और ब्रेक है और इसमें कोई प्रॉब्लम है। देन फिश के साइज के हिसाब से आपने उसको कितनी फीड देनी है। अगर 1 से 5 ग्राम की फिश है तो आपने 10% उसको फीड देनी है, ठीक है। 6 दफ़ा फीड आपने देनी है। 5 से 20 ग्राम अगर फिश का वेट है तो आपने 6% उसको, 6% आपने उसको फीड देनी है, ठीक है। 4 टाइम्स आप उसको देंगे। 20 से 100 ग्राम अगर उसका वेट है तो आप उसको 4% बॉडी वेट के हिसाब से आप उसको फीड कैलकुलेट करेंगे। 3 to 4 टाइम्स आप उसको फीड देंगे, और अगर 100 ग्राम से ज़्यादा है तो आप फिर 2% के हिसाब से फीड कैलकुलेट करेंगे और सिर्फ 2 दफ़ा फिश को फीड देंगे। देन क्राइटेरिया, ठीक है, आपने फीडिंग रिस्पॉन्स को जो है वो रिस्पॉन्स देखना है कि कितना है। एक्सीलेंट रिस्पॉन्स तब होता है कि अगर 5 से 10 मिनट में सारी फिश फीड जो है वो फिनिश हो चुकी है। गुड है कि 15 से 20 मिनट में अगर फीड फिश ने कंज्यूम कर लिया तो इसका मतलब है इट इज़ बेटर। अगर 30 मिनट्स में कंज्यूम की है और जितनी आपने फीड फिश को दी थी उससे 3 गुना उसने कंज्यूम कर लिया, इसका मतलब है ठीक है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आपने फीड दी है और 1 घंटे तक फिश ने फीड कंज्यूम नहीं की है और जितनी आपने फीड दी थी उसकी सिर्फ 1% उसने जो है वो कंज्यूम किया, तो इसका मतलब है आपकी फिश में मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी भी है, डिजीजेस भी हैं, जिसकी वजह से फिश जो है वो कंज्यूम नहीं करी फीड। मे बी वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स जो हैं वो भी सही नहीं है। फिश फीड कब नहीं लेती, ठीक है, जब जो है वो फिश अनवेल है, ठीक है। हार्वेस्ट जब हम करते हैं तो उसकी वजह से भी फिश डिस्टर्ब हो जाती है, या ट्रांसपोर्ट हम करते हैं फिश को एक जगह से दूसरी जगह, तो पहले दिन या 2 दिन तक हम उसको फीड नहीं देते हैं क्योंकि वो फिश स्ट्रेस की कंडीशन में होती है और फीड कंज्यूम नहीं करती है, ठीक है। इसके अलावा वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स जो हैं या रेनी डेज जो हैं इसके दौरान भी फिश फीड कंज्यूम नहीं कर रही होती। सो मैनेजिंग फिश वेस्ट इज अवॉइडिंग ओवरफीडिंग, हमेशा फिश को कम दें और जितना उसकी बॉडी वेट के हिसाब से फिश को फीड चाहिए आप उतनी ही फिश को फीड सप्लाई करें। अवॉइड ओवरफीडिंग एंड ऑलवेज प्रेफर
to use floating feed, so you can predict how much the organism consume the feed. That's all about today's lecture. I hope today's lecture is helpful for you. If you like the video, please like, share, subscribe the channel. Stay connected. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.